کے لیے جس میں ہم کلام کے بارے میں سیکھتے ہیں، کلام کے فریدوں اور معاشروں میں سیکھتے ہیں۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت کلام کے لیے نکالا، اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور پاک کو عزت و جلال دیتے ہیں، کیونکہ پاک ہماری قوت ہے، ہماری صفت ہے۔ آئے میرے ساتھ زبور نمبر 50 کے بارے میں۔ چلیے پہلے 147 زبور 147 145 145 زبور 145 اس کو دیکھیے۔ آج کا جو کلام کا موضوع ہے وہ ستائش کے حوالے سے ہے۔ ہم ستائش کے حوالے سے کلام کے کلام سے سیکھ رہے ہیں۔ زبور 145 نکالیے سب نکالیے۔ اچھا، زبور 145 میں خدا کا بندہ، خدا کا مقصد داؤد نبی فرماتا ہے، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا۔ داؤد کے الفاظوں پر آپ نے غور کریں، اے میرے خدا، اے میرے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کروں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کو ٹک کر لیں۔ آیت نمبر 3 کو آپ غور رکھیے گا، کیا کہتا ہے داؤد؟ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے اور اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیری عجائب پر غور کروں گا اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے۔ اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا اور تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت عبدالآباد ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہو کو سنبھالتا ہے۔ آیت 14 کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ گرتے ہو کو سنبھالتا اور چھپے ہو کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر خوراک، ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے گا۔ خداوند کے پاک نام کی پڑھے اور سمجھ جانے پر خدا کا برکت، خدا کا شکر۔ یہ تو تھا زبور 145 کا تعارف۔ آئیں خداوند کے کلام کو سمجھنے کے لیے خداوند کے کلام کی اور زیادہ آیات کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے زبور 145 کی 3 آیت کو دیکھا ہے۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے اور اس کی بزرگی ادراک سے باہر۔ آیت 3 خداوند کو بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق اور اس کی بزرگی جو ہے ادراک سے باہر بیان کرتی ہے۔
अब बेहद सताइश के जो लायक खुदा है, आप देखें कि कायनात में उस बुजुर्ग खुदा ने हमारे लिए एक बड़ा मुकाशवा रखा है और बहुत बड़ा मुकाशवा, उसने बड़े काम की। हम देखते हैं बनी इसराइल के साथ साथ खुदा चलता रहा और उसने, हम देखते हैं अपने बंदा इब्राहिम को बरकत दी, उसे कौमों का बाप ठहराया। हालांकि हम आदम से पैदा हुए हैं और हमारा बाप जो है वो आदम ठहरना चाहिए, लेकिन ऐसा बीच में क्या ब्रेक थ्रू हुआ, क्या ऐसा खुदा अपने बंदा के वसीला से रुका कि उसने इब्राहिम को कौमों का बाप कहा। हालांकि हम पैदा तो आदम से हुए हैं, तो हमारा बाप कौन होना चाहिए? आदम होना चाहिए, लेकिन इब्राहिम को कौमों का बाप क्यों कहा गया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इब्राहिम ईमान पर खड़ा रहा। किस पर खड़ा रहा? ईमान पर। वो अनदेखी चीजों का, उसका जो ईमान था वो अनदेखी चीजों का सबूत ठहरा। पौलुस कहता है हमारा जो ईमान है वो अनदेखी चीजों पर है। हाँ, वो बयान करता है कि अब आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। पौलुस कहता है कि अब आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, तो इब्राहिम को तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, समझ रहे बात को? इब्राहिम को कहा कि तू अपनी जात भूमि को छोड़ और जो मैं तुझे कहता हूँ और जहां कहता हूँ तू चल। तो क्या उसने इकरार किया? इकरार किया, और इकरार करने की वजह से ही वो कौमों का बाप ठहरा। हालेलुया, वो कौमों का बाप ठहरा। यानी ईमानदारों की जमात का जब तस्करा किया जाएगा तो आदम से नहीं, इब्राहिम से शुरू किया जाएगा। इसीलिए हमें इब्राहिम के फर्जंद, ईमानदारों को इब्राहिम के फर्जंद कलाम बयान करता है। हालेलुया, किसका बयान करता है? ईमानदारों का। अगर हम ईमानदारों के फर्जंद हैं तो हम बाप इब्राहिम से शुरू होते हैं, आदम से शुरू भी होते हैं। आदम हमारा जिस्मानी बाप है, वो हम उसकी औलाद हैं। ये तो हमारा फख्र है कि हम आदम की नस्ल से हैं। लेकिन आदम ने गुनाह किया और जिस्मानी हालत में रह के दुनिया से चला गया। इब्राहिम को खुदा ने कॉलिंग दी और उसको बुलाया और जो उसे कहा उसने किया। अब जो उस खुदा ने कहा उसने वो किया, और हम देखते हैं कि उसने एक बड़ा काम किया जो आज तक नस्ल इंसानियत को किसी ने नहीं किया। वो क्या था कि अपने बेटे को ले और इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। आप बताइए जरा, ये कितना मुश्किल काम है। आज अगर किसी को ये कहा जाए तो मेरा ख्याल है वो करने के लिए कभी भी रज़ामंद नहीं होगा उस तौर पर, जबकि वो उसको जानता ना हो। अभी वो पूरे तौर पर उसको नहीं जानता। पौलुस कहता है कि हम आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, तो ये तो सदियों पहले की बात है। तो उसको कितना नजर आता होगा? वो उसको नजर नहीं आता। जो वो कहता, खुदा जो कहता था वो करता था, और फरिश्ते आकर उसको तकवीरें देते थे, हाँ, कि खुदा ने तेरे हक में ये ठहराया है और तू अगर ऐसा करेगा तो वो तुझे बरकत देगा, तेरी मेरास को बरकत देगा, तेरी औलाद को बरकत देगा। और जब औलाद की बात आई तो उसने क्या कहा? मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की माने बना दूंगा। ये फिर उसकी ब्लेसिंग है। अगर आज हम भी खुदा के अहद पर, खुदा के कलाम पर यकीन करेंगे तो यकीन हमारे लिए भी खुदा ने बड़ा अजर अज़ीम रखा है। ठीक है, 3 आयत। खुदावंद बुजुर्गों का बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। हमारी समझ में नहीं आ सकता खुदा ने हमारे लिए क्या मंसूबा रखा है, क्या हमारे लिए प्लान रखता है, हमारी नस्ल के लिए क्या प्लान रखता है, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए क्या प्लान रखता है, हमारे लिए इन फ्यूचर क्या प्लान रखता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो बुजुर्गी है वो अदराक से बाहर है। और उसकी 14वीं आयत पर गौर करें तो लिखा है खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। और इसके साथ इसका जो दूसरा हिस्सा है, और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। अब ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं इसी आयत में, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। समटाइम ये होता है कि ईमानदार भी होता है, अगर उस पर कोई मुश्किल आती है, कोई उसमें दुख आता है, कोई बीमारी की सूरत में आता है, कोई फाइनेंशियली तौर पर कमजोर हो जाता है,
या उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं, कारोबार नहीं रहता, सेहत नहीं रहती, किचन में बरकत नहीं रहती, तो क्या होता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो लेट डाउन, यानी कि नीचे झुक जाते हैं। हाँ, वो सोचता है, फिक्र करता है, और अभी ये गिरा नहीं है, खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। क्या करता है? गिरते हुए। क्या वो गिरा था? वो गिरा नहीं गिरा, गिरने की पोजीशन में है, वो गिरने की, लेकिन खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। और खुदा का रूह जो है, हम जो यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हैं, उसके लहू से धुले हैं, पाक रूह हमें गिरने ही नहीं देता। हालेलुया। सादक लिखा है, सादक। अच्छा, तो रात में अगर ज़बूर में जाएं, तो रात में जाएं तो लिखा है क्या कि वो गिरते हुए को संभालेगा। वो गिर जाएगा तो उसको उठाएगा। और हम नए नियम में देखें तो वो गिरने से पहले ही संभाल लेता है। हालेलुया। तो ऐद में देखें तो क्या है, वो गिरा हुआ है और उसको पकड़ेगा, संभालेगा। और अगर हम आए फजल के दौर में आए, नए नियम में आए, तो वो गिरने ही नहीं देता, वो गिरने से पहले ही पकड़ेगा। हालेलुया। अच्छा, पत्थर से डुबा सी कि डुबा तो पहले ही पड़ा गया था। ये बताएं जरा मुझे, शरीयत में के असूल में और इस असूल में, फजल के असूल में थोड़ा सा टेक्निकली फर्क है। शरीयत में लोग गिरते थे और गिरे ही रहते थे। बनी इसराइल गिरे और 450 साल तक वो गिरे रहे। आखिरकार लिखा, खुदा ने अपनी उम्मत को याद किया। वो गिरे हुए हैं, गुनाह में गिरे हुए हैं। बाल की प्रस्तिश कर रहे हैं, अस्तारात की देवी की प्रस्तिश कर रहे हैं। अच्छा, हरे दरख्त के नीचे वो बैठे प्रस्तिश कर रहे हैं। उनके बच्चे जो है वो लकड़ियां जमा कर रहे हैं। औरतें बड़े शौक पर आग सुलगा रही हैं, यानी कि उसके तपाउं दबा रही हैं अस्तारात के। ठीक है, तो वो क्या गिरे हुए हैं। और फजल के दौर में खुदा यीशु मसीह के नाम में जब हम आ जाते हैं, तो हम गिरने से पहले ही खुदा हमें संभाल लेते हैं। हालेलुया। आप देखेंगे पतरस अभी पानी पे चल रहा है और वो गिरने की पोजीशन में है, इससे पहले कि वो गिरे उसको खुदा पकड़। हालेलुया। वो गिरने ही नहीं देता। ये फजल के फतन जो है ना, बड़े मुबारक लोग हैं, ये गिरने से पहले ही खुदा उनको संभाल लेते हैं। और हम देखते हैं खुदावंद गिरते हुए को संभालता है। इस पर ये फजल के लोगों के लिए ये बात लिखी गई है। किनके लिए लिखी गई है? आखिरी जमाना के और फजल के फतंदों के लिए ये बात लिखी गई है। ठीक है, खुदावंद गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। अब ये कौन सा झुका होता है? एक तो झुका होता है बोझ की वजह से, और एक झुका होता है हमत की वजह से, एक झुका होता है शुक्रगुजारी की वजह से। दो तरह के झुके हुए हैं। और खुदावंद गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए उठा खड़ा करता है। और 15वीं आयत में लिखा है, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। अच्छा, दुनिया के जितने भी माबूद हैं ना, वो आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये गौर करने वाली बात है। और आपका खुदा क्या कर सकता है? हमने ये फर्क ढूंढना है, क्योंकि ये मुकाशफा है, भेद है। दुनिया के जितने माबूद हैं वो आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। ख्वाहिश तो हर कदम इंसान की चेंज होती रहती है। कहता है कि ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो इंसान का हर पहले चेंज होता रहता है। अच्छा, अभी लेना है, अभी लेना है, अभी लेना है, उस रोता भी हो ना, वो ये ख्वाहिशें हैं। और आपका खुदा जो है वो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। हालेलुया। और लिखा हर जानदार की, इंसान तो बशर तो बड़ी चीज है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा बेटा तुझसे मछली मांगे तो क्या तुझसे सांप देगा? हाँ? और अगर तू नकम्मा होकर, दुनिया का होकर और आदम होकर, मखलूक होकर अपनी औलाद को अच्छी चीजें देना जानता है, तो तेरा बाप जो आसमानी है और तेरा बाप जो सब कुछ देने की ताकत और कुदरत रखता है, वो तुम्हें क्यों कर अच्छी चीजें ना देगी। हालेलुया। हम दुनिया हो गया, दुनिया के होकर के अपनी औलाद को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो खुदा जो आसमानी है वो हमें क्यों करना देगा। अच्छा, हम गौर कर रहे थे, खुदा गिरते हुए संभालता है और झुके को उठा खड़ा करता है। अच्छा, इसमें जो पहले इसी हमने देखा, इसी में देखते हैं यीशु ने कहा, ए बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। क्या कहा? ए बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
अच्छा जी, ये तो वो बोझ वक्त हो गया जो शरीयत के रब्बियों ने, उस्तादों ने शरीयत का बोझ ऊपर लादा हुआ था। ये कोई फिजिकली बोझ नहीं था, ये रूहानी बोझ था कि जी आपने शरीयत में रोजा भी रखना है, आपने दायकी भी देनी है, आपने हाइकल में जाके चंदे भी देने हैं। हमें हाइकल का कहाँ जितना मर्जी वीर बन जाए, पुलिस से बेचारी होती सैकल देने भी लगी रहती हो गया। हमने चंदा भी देना है, और उनके रबी क्या कहते थे, चंदा भी देना है, हाइकल से तू दायकी भी देनी है, हाँ तो कुर्बानियाँ भी चढ़ानी है। उनकी कोई मेरा 6 से ऊपर उनकी कुर्बानी है, 6-8 कुर्बानी है उनकी, जो साल में वो कुर्बानी ही देते रहते थे। सूरती कुर्बानी, नजर की कुर्बानी है जी, गुनाह की कुर्बानी, कुफारे की कुर्बानी, जी ईदा की कुर्बानी, बहुत सारी उनकी ईदें थी। और वो सारा बोझ एक कमजोर बंदे पे जब ला दिया जाए इतना सारा बोझ, तो वो क्या करेगा, उन्होंने लाके नहीं सुना होगा, हाँ वो गिरते हुए वो वाली लिख रही थी बेचारा बोझ, तो इतना बोझ तो पाया, इतना बोझ उस पर लादा गया, कमर ही टेढ़ी हो गई। कमाई करना वो देखते दमड़ी वाली मिसाल, और उसमें वो क्या थी, औरत उबड़ी हुई थी। ये बनी इसराइल के लोगों का भी यही हाल थी, वो तो फिजिकली तौर पर नजर आती है ना कुबड़ी है, और ये पूरी उम्मत ही कुबड़ी थी, शरीयत के बोझ से दबे हुए थे। और खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए कहा ऐ बोझ से दबे हुए, यानी काहन और रब्बियों ने जो बोझ तुम पे डाला हुआ है, इधर आओ मेरे पास, ये बोझ मुझे दे दो, ये बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यानी जो बोझ जिन्होंने तुम्हें लादा हुआ है और तुम आराम में नहीं हो, बेचैन हो, हाँ और रूहानी तौर पर तुम कुबड़े हो चुके हो, सीधे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा कि खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या प्लान रखता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। ये इसराइल का खुदा ही है, ये वो हकीकी खुदा है, हम कायनात का जो मालिक है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो हमारी जरूरतों को नहीं हमारी ख्वाहिशों को भी पूरी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद 20वीं आयत पर गौर करें तो लिखा है खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। अगर हम यशायाह 50 पर गौर करें ना तो लिखा है उसकी 4 आयत में, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मानदे की मदद करूं। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मानदे की मदद करूं। और यशायाह उसकी दूसरी आयत में देखिए तो क्या लिखा है, और क्या मुझ में निजात देने की कुदरत नहीं। अब ये खुदा इंसान से सवाल करता है कि लिखा यीशु कहते हैं बोझ से दबे हुए मेरे पास मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यशायाह 50 बाब और उसकी 2 में कहता है, और क्या मुझ में निजात देने की कुदरत नहीं। देख मैं अपनी एक धमकी से समंदर को सुखा देता हूं और नहरों को सहरा कर डालता हूं। अब ये खुदा कहता है मैं जोरावर खुदा हूं, मैं कुदरत वाला खुदा हूं, मैं कामिल खुदा हूं। मेरी झिड़की से सहरा भाग जाते हैं और तराई आ जाती है, और मेरी ही झिड़की से पानी भाग जाता है और सहरा आ जाता है। यानी अगर वो चाहे तो तराई को पानी को खुश्की कर दे और खुश्की को पानी, क्योंकि समंदर वह उसके हुक्म को मानते हैं। यीशु देखेंगे जब हम देखते हैं कि कश्ती में जा रहे थे और लिखा है यीशु थकावट और खिदमत के बायस क्या हुए, थक गए और उनको नींद आ गई। और लिखा है कि उस पानी में बड़ा तूफान आया और शागिर्द कहने लगे उस्ताद तू सो रहा है और हम मरे जाते हैं, हम डूबे जाते हैं। तो यीशु ने उनको क्या कहा, ऐ कम इक्तदादों। इसका मतलब है कि वो अब ये यशायाह 50:4 में क्या कहता है, यशायाह क्या कहता है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान दी। जरा गौर रखिए इस बात पर, गौर करें। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद कर सकता हूं।
अब अगर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो शागिर्दों की सी जुबान सीख जाते तो उस्ताद बेशक सोए भी हुए थे ना, तो वो पानी को हुक्म देते, तूफान को हुक्म देते, तो क्या वो तूफान थम ना जाता? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो थम जाता। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ए कम इक्तदा दो, यानी तुमने अपना ईमान नहीं दिखाया, तुमने वो काम नहीं किया कि जब तुम डूब रहे थे तो तुमने जो मुझसे तालीम पाई है, मुझसे जो जुबान सीखी है, मुझसे जो इल्म सीखा है, मुझसे जो इख्तियार पाया है, वो इख्तियार इस्तेमाल करते तो ना डूबते। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इसीलिए काम इक्तदार कहा और खुद काम करना शुरू किया, और उसने तूफान को डांटा और लिखा तूफान थम गया। हालेलुया। अगर शागिर्दों की जुबान को सीखे होते, जिस तरह यसाया 50 बाब 4 आयत में कहते हैं कि खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, आज हमें भी मेरे अजीजों हमें शागिर्द की जुबान सीखने की जरूरत है। रसूलों को भी शागिर्द की जुबान सीखने की जरूरत पड़ी, और जब शागिर्दों को और नबियों को शागिर्द की जुबान सीखने की जरूरत है, तो आज हमें शागिर्द की जुबान सीखने के लिए शागिर्द बनना पड़ेगा। अगर हम शागिर्द नहीं बनते तो फिर हम शागिर्द की जुबान भी नहीं सीख सकते, और अगर हम शागिर्द की जुबान नहीं सीख सकते तो फिर हम इख्तियार भी नहीं पा सकते। फिर हम इख्तियार नहीं होगा तो फिर हम अंजील के लिए काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो मेरे शागिर्द हो, जाओ और अंजील की मुनादी जमीन की इंतहा तक करो, और जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो। और जब तुम मेरे गवाह हो तो फिर वो क्या कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब वो हमारे साथ होगा तो फिर कामयाबी भी हम समेटेंगे, सेहत भी समेटेंगे, जिंदगी भी समेटेंगे, और आने वाले वक्तों के लिए अच्छी दौड़ को जीत जाएंगे। पौलुस कहते हैं मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। लेकिन उसने तो अपनी दौड़ मुकम्मल की और अच्छी कुश्ती उसने लड़ी, बीमारी के खिलाफ, शरीरों के खिलाफ और दुश्मन की तसीरों के खिलाफ वो लड़ा, और कामिल तौर पर उसने अपनी जंग को जीता है। और मेरे अजीजों हमें वो जंग जीतनी है, और उस जंग को जीतने के लिए हमें शागिर्द बनने की जरूरत है। जैसे यसाया कहते हैं कि मैं शागिर्द की जुबान मुझको बख्शी, खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। आज अगर हम अपनी बाकी मादा ख्वाहिशों के साथ साथ मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, मेरा किचन बहाल हो जाए, मेरे घर में शादमानी हो, मेरे घर में खुदा का कलाम हो, इन सारी ख्वाहिशों के साथ साथ ये हमारी ज़रूरतें भी हैं और हमारी ख्वाहिशें भी हैं। इन ख्वाहिशों के साथ साथ आज से हमने खुदावंद से शागिर्द बनने के लिए तैयार हो लेना है। हालेलुया। अपनी जिंदगी में शागिर्दियत को आने दें, और फिर देखें खुदा का मसा आपको अपनी कुदरत के लिए गहरे तौर पर इस्तेमाल करेगा। और कायनात का जो सबसे बड़ा मुकाशवा है, आपको पता कायनात का सबसे बड़ा मुकाशवा कौन सा है? कायनात में ये समझ लें, कायनात में सबसे बड़ा जो मुकाशवा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। कायनात में सबसे बड़ा मुकाशवा, अगर आपसे कोई पूछे कायनात में सबसे बड़ा मुकाशवा क्या है, देखिए इंसान जो है वो बुलंदियों में जा रहा है, आसमानों में जा रहा है और सियारों में जा रहा है। इसका मतलब है कि वो हर शय को तस्खीर कर रहा है, हर शय पर गलबा पा रहा है। समुद्रों की गहराइयों में जा रहा है, उनकी जो हदें हैं उनको जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो वो चीजें हैं जिनको तस्खीर कर रहा है, जिनकी हदों को जानने की कोशिश कर रहा है, जान भी काफी हद तक जान भी चुका है, ठीक है। लेकिन कायनात का एक सबसे बड़ा जो मुकाशवा है, सबसे बड़ा जो राज है, वो यीशु मसीह खुद है। वो यीशु मसीह खुद है। उसने मगरूरों से और तकब्बुर करने वालों से और घमंडियों से अपने मुकाशवा को छुपाया है।
यशायाह में क्या सब पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो अजीब है, वो मुशीर है, वो खुदाए कादर है, वो अब्दियत का बाप है, वो सलामती का शहजादा है। तो सलामती का शहजादा जो यीशु है, ये मुकाशवा है। क्या है? मुकाशवा है। यूहन्ना अरब क्या कहते हैं? यीशु मसीह का मुकाशवा। यीशु मसीह का जो मुझ पर खुला, यूहन्ना अरब कहते हैं जो मुझ पर खुला हो गया है यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह खुद एक मुकाशवा है। हम इस मुकाशवे को जब तक हम शागिर्द की जुबान नहीं ना समझेंगे, हम यीशु मसीह के मुकाशवा को नहीं समझ सकते, यीशु मसीह की जात को नहीं समझ सकते। यीशु मसीह खुदा से खुदा है। हम कभी ब्लैक बोर्ड लाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि खुदा से खुदा कैसे होता है। खुदा से और खुदा से खुदा हो और कामल भी हो। कामल का मतलब होता है अपनी जात में एकता, यकता और मुकम्मल। यीशु मसीह इसीलिए शागिर्द इस बेत को जान गए और उन्होंने कहा यीशु खुदा, कामिल खुदा और कामिल इंसान है। इंसान होकर खुदा यीशु मसीह जब इंसान होकर कामिल खुदा कैसे हुए, ये हम एक दिन ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे इसको, ठीक है। और हम देखेंगे कि कामिल खुदा से जो चीज निकलती है फिर वो कामिल कैसे रहता है। आपका और मेरा खुदा जो है वो बदन में भी कामिल है और रूह में भी कामिल है, वो ऊपर भी कामिल है और नीचे भी कामिल है। और हर एक घुटना, इसीलिए रसूल कहते हैं हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो, ख्वाह वो जो जमीन के नीचे है, क्योंकि वही हम्द के लायक है, वही तारीफ के लायक है, वही जलाल के लायक है। और हमने ज़बूर 145 की पहली आयत में भी देखा, ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा, और मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरी सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग, वो बदन में भी बुजुर्ग है, वो रूह में भी बुजुर्ग है, वो बदन में भी कामिल है और रूह में भी कामिल है। खुदावंद बुजुर्ग, वो बदन में भी बुजुर्ग है और रूह में भी बुजुर्ग है, ठीक है। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। अगर हम यीशु मसीह में उसके बदन में उसको सिजदा करते हैं तब भी बुजुर्ग खुदा के नाम को जलाल मिलता है। अगर हम रूह में उसे सिजदा करते हैं तब भी खुदा के नाम को जलाल मिलता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जात हमारे अदराक, उसको समझना हमारे अदराक से बाहर है। लेकिन जितनी चीजें हम समझ चुके हैं उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, शागिर्दियत की रूह लें और इल्म और मुकाशवे आप पर खुलेंगे। और सुलेमान में देखिए कहते हैं खुदा के कलाम में कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शब्द। अगर हम शागिर्द बन जाएंगे तो फिर एक अच्छे तहकीक करने वाले बन जाएंगे, अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, अच्छे शागिर्द होंगे तो आप पर खुदा का कलाम और खुदा के भेद आप पर खुलेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है मेरे अज़ीज़ों कि हम शागिर्द बने। हम क्या आज शागिर्द नहीं बन रहे? अगर शागिर्द होता है जो है ना, लिखा मेरी भीड़ें मेरी आवाज को सुनती है। हाँ, तो चरवाहे को उन्होंने क्या किया? पहचान लिया। और जब हम दर बदर फिरते रहेंगे ना तो फिर यकीन करो का कोई समझ नहीं जाएगा। शागिर्द बने। मैं आपसे बार बार इस बात के लिए मैं बड़ा जोर दूंगा इस बात पर कि शागिर्द बने। यानी शागिर्द जो होता है उस्ताद से सुनता है, और उस्ताद जो होता है वो डिलीवर करने की पोजीशन में होता है, वो डिलीवर करता है। कलाम कहता है जिसके कान हो सुनने के रूप नहीं सकते। और ये शागिर्द के लिए ये मैसेज है। ये फिरने जो चक्कर लगाते फिरेंगे फिर समझ में नहीं आता। शागिर्द के लिए मैसेज है, जिसके कान हो सुनने के रूप नहीं से क्या फर्क है। खुदा इस नाम में